And pranam to all of you. Again, I am coming back to my channel, Asit Governmental Guru Let's Compete. Today, I will discuss measurement and evaluation. It is part 6. In this part, I will discuss different types of evaluation, also convergent thinking and divergent thinking. Different types of evaluation, it is formative, summative, placement, external, internal evaluation. With examples I will discuss. And also two important thinking, it is convergent and divergent thinking. Also 10 MCQs. Definitely the session would be interesting one. Till end listen the video. You can get complete information, and it is very useful for UPSC principal and very vice principal exams. So you see my channel, it is Asit Governmental Guru Let's Compete. Please, if you see my video, then do not forget to click on the subscribe button. Please like my channel, share my channel, so that you can get benefit, and also you share my channel with your friends and colleagues also, they can get benefit. You see my WhatsApp number, it is 8327782034. If any query is there, you contact with me and clear your doubt. Again, join my WhatsApp number, it is 8327782034. If any query is there, you contact with me and clear your doubt. So now I am going to discuss different types of evaluation, and convergent thinking and divergent thinking. First one, I want to discuss about the definition of evaluation. You see how to define evaluation. It is a systematic process of judging the value, worth, or effectiveness of an educational process or product. It assesses various facets of a student, including achievement, aptitude, skills, interest, and overall personality development, as well as the methods and curriculum used in teaching and learning. देखिए, एवेल्युएशन आप देखा होगा टर्म एंड एग्जामिनेशन, जैसे एनुअल एग्जामिनेशन के बाद, ठीक है, एनुअल एग्जामिनेशन के बाद एकेडमिक परफॉर्मेंस, चाइल्ड का एकेडमिक परफॉर्मेंस क्या है, उसका लेवल क्या है, वो जज किया जाएगा, उसका रैंक क्या है, उसका परसेंटेज क्या है. तो एवेल्युएशन तीनों चीज के ऊपर बिलीव करता है. एक है क्वांटिटी, सेकंड वन क्वालिटी, थर्ड वन जजमेंट. याद रखिए, फर्स्ट वन क्वांटिटी प्लस क्वालिटी प्लस judgment. Okay, so quantity, actually how much percentage the child got in annual examination. Okay, so how much quantity of mark, or in different subjects actually how many marks he got. Then quality, what is his rank, suppose what is his position in the class. Then judgment, after annual examination, suppose you consider after board examination, after 10th class examination, then it means what is the level of the child, how much percentage he got. So from that actually easily the judgment can be made कि what would be his academic performance in future. So in which stream actually he must join. Suppose he choose science stream, then which subject should be suitable for him. So evaluation, actually it is a systematic process of judging the value, worth, or effectiveness of an एजुकेशनल प्रोसेस. एवेल्युएशन, उसमें सपोज हम ओवरऑल स्टूडेंट्स का स्कूल एवरेज देखेंगे. स्कूल एवरेज देखने के बाद हम डिटेक्ट करेंगे कि जो टीचर्स का जो लर्निंग मेथड था, उनका जो लर्निंग स्ट्रैटेजी था, क्या वो लर्निंग जो ऑब्जेक्टिव्स है क्या वो अचीव किया है, क्या जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि स्कूल एवरेज ये होना चाहिए, क्या वो रीच किया. तो जो लर्निंग मेथड से, ठीक है, और जो टीचिंग स्ट्रैटेजी है उसको भी एवेल्युएट किया जाएगा. इंडिविजुअली टीचर्स का जो लर्निंग मेथड से, जो टीचिंग मेथड से, जो टीचिंग स्ट्रैटेजी है उसको भी एवेल्युएट किया जाएगा. जैसे पर्टिकुलरली सब्जेक्ट का एवरेज हम देखेंगे, ठीक है. तो एवेल्युएशन में बहुत कुछ ट्रेड्स के ऊपर एक्चुअली एवेल्युएशन किया जाता है. जैसे
अचीवमेंट हो गया, जैसे मैं बताया एनुअल एग्जामिनेशन के बाद उसका क्या एकेडमिक अचीवमेंट है और उसका क्या लेवल है और फ्यूचर में अ, उसका एकेडमिक परफॉर्मेंस क्या होगा और वो कौन सा स्ट्रीम में जाएगा तो उसके लिए सुइटेबल होगा। एप्टीट्यूड टेस्ट ऑल्सो, एप्टीट्यूड टेस्ट से इवेलुएट किया जाएगा कि उसका क्या एबिलिटी है, एबिलिटी टू लर्न। ओके, क्या उसका स्किल पावर है, तो इन फ्यूचर एक्चुअली इन which डायरेक्शन द चाइल्ड कैन मूव। ओके, whether engineering, whether medical or management, in which direction actually the child must proceed. It means related to the academic improvement. Similarly, skills, interest, ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट सबको एवेलुएट किया जाएगा। तो एवेल्युएशन में थ्री चीज, वो क्वांटिटी को बिलीव करता है, परसेंटेज को, क्वालिटी उसका रैंक, और थर्ड वन जजमेंट, क्या उसका एकेडमिक परफॉर्मेंस का लेवल क्या है। ठीक है, और फ्यूचर में उसका एकेडमिक परफॉर्मेंस क्या होगा। ठीक है, तो ये एवेल्युएशन है। एग्जाम्पल दिया है, ए टीचर conducts a test to assess students' achievement and understanding of a topic and judges whether the learning objectives have been achieved. टीचर ने एक टेस्ट कंडक्ट किया और स्टूडेंट का अचीवमेंट को असेस किया। उससे वो जज करेगा, जो इट मीन्स रिजल्ट से उसको पता चला क्या वो चाइल्ड लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स को अचीव किया। तो यहां पर आप क्या समझ रहे हैं, व्हाट इट मीन्स हाउ टू डिफाइन लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स। वही है जो वो लर्न किया, क्या वो उसको यूज करके क्या उसका लर्निंग एबिलिटी है। आफ्टर लर्निंग एवरीथिंग, वेदर एक्चुअली ही कैन यूज these learning abilities, ओके, फॉर फर्दर डेवलपमेंट। तो ये सब लर्निंग ऑब्जेक्टिव से पता चलता है। ठीक है, तो ये टीचर कंडक्ट्स ए टेस्ट टू असेस स्टूडेंट्स अचीवमेंट एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ ए टॉपिक एंड जजेस वेदर द लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैव बीन अचीव्ड। तो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स वही है कि एबिलिटी टू लर्न, ओके, एंड जो लर्न किया, जो कंसेप्ट लर्न किया, कि जो कंटेंट लर्न किया, क्या वो उसको प्रॉपरली यूटिलाइज कर सकता है फ्यूचर के लिए, क्या उसके ऊपर उसका कंप्लीट नॉलेज है, क्या उसको प्रॉपरली वो एलाबोरेट कर सकता है, क्या प्रॉपरली उसको वो क्लैरिफाई कर सकता है, क्या वो कॉन्सेप्ट को अदर कॉन्सेप्ट के साथ वो कंपैरिजन कर सकता है। तो ये है, तो वो एवेल्युएशन में, वो जजमेंट में आता है कि रिजल्ट में इतना परसेंटेज मिला, इतना मार्क मिला, और क्या वो लर्निंग ऑब्जेक्टिव को अचीव किया। तो ये एवेल्युएशन थे। तो एवेल्युएशन में क्वांटिटी, क्वालिटी एंड जजमेंट आता है। ठीक है, नेक्स्ट को चलेंगे, फॉर्मेटिव एवेल्युएशन। डिफरेंट टाइप्स ऑफ एवेल्युएशन डिस्कस करेंगे। फॉर्मेटिव एवेल्युएशन, आप देखिए, फॉर्मेटिव एवेल्युएशन में थोड़ा ब्रीफली बता देता हूं। जब टीचर कोई कंटेंट को डिस्कस कर रहा है, कोई कंटेंट और यूनिट को डिस्कस कर रहा है, ठीक है, तो आफ्टर कंप्लीशन ऑफ ईच एंड एवरी यूनिट वो एक असेसमेंट टेस्ट लेगा। ओके, कोई कंटेंट है, कोई यूनिट वो खत्म किया, उसके ऊपर वो एक माइक्रो टेस्ट कंडक्ट करेगा। ठीक है, एक माइक्रो टेस्ट की एक असेसमेंट टेस्ट वो कंडक्ट करेगा। ठीक है, एक छोटा सा टेस्ट कंडक्ट करेगा और उसमें वो डिटेक्ट करेगा कि वेदर द स्टूडेंट्स दे अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट्स प्रॉपरली और नॉट। ठीक है, वो जो टेस्ट आफ्टर एवरी यूनिट द चाइल्ड कंडक्ट द टेस्ट, उससे उसको पता चलेगा कि वेदर द स्टूडेंट्स एक्चुअली दे अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट और नॉट, वेदर दे क्लैरिफाई इट मीन्स प्रॉपरली द कॉन्सेप्ट और नॉट। तो इससे उसको पता चलेगा। सपोज वो डिटेक्ट किया कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स एक्चुअली दे कुड नॉट अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, वो लेसन एक्चुअली डिलीवर किया, लेसन डिलीवर करने के बाद सपोज वो एक असेसमेंट टेस्ट लिया, उससे डिटेक्ट किया कि टेस्ट से पता चला कि मेजॉरिटी स्टूडेंट्स एक्चुअली गॉट लेस मार्क, तो इट मीन्स उनका अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम है। तो वो क्या करेगा, नेक्स्ट वो डिसाइड करेगा कि वही लेसन को, कि वही यूनिट को, कि वही कंटेंट को
वो अगेन वो एक्चुअली रीटीच ओके करेगा। तो ये है फॉर्मेटिव एवेल्युएशन। तो आफ्टर कंप्लीशन ऑफ एवरी यूनिट वो लर्निंग चल रहा है, लर्निंग प्रोसेस चल रहा है और टेस्ट चल रहा है। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ एवरी यूनिट टीचर कंडक्ट द टेस्ट and detect whether the students they understood the concept or not. If the students actually they could not understood the concept, then immediately he conduct it means he teach the lesson again. अभी क्लियर अंडरस्टूड? तो ये है फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन, उसके ऊपर हम देखेंगे। इट इज एन ऑनगोइंग इवैल्यूएशन कंडक्टेड ड्यूरिंग द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। जब टीचिंग लर्निंग प्रोसेस चल रहा है, ये एक जो इवैल्यूएशन है वो ऑनगोइंग इवैल्यूएशन है। टू चेक स्टूडेंट्स प्रोग्रेस एंड इंप्रूव लर्निंग, क्या चाइल्ड प्रोग्रेस कर रहा है कि नहीं, कि उसका लर्निंग में इंप्रूवमेंट आ रहा है कि नहीं। व्हेन ड्यूरिंग टीचिंग लर्निंग, पर्पज टू आइडेंटिफाई लर्निंग गैप्स एंड इंप्रूव टीचिंग एंड लर्निंग। व्हाट डज इट चेक? स्टूडेंट्स नॉलेज, स्किल्स, एटीट्यूड्स एंड ओवरऑल डेवलपमेंट। फीडबैक, इमीडिएट फीडबैक इज गिवन टू स्टूडेंट्स so that they can improve. Nature, it is a monitoring and improvement oriented evaluation. मेन फोकस इंप्रूवमेंट, नॉट फाइनल जजमेंट। ठीक है, तो मैं जो बताया आपको इसमें तो बहुत कुछ इंफॉर्मेशन आपको मिला। तो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस चल रहा है और स्टूडेंट्स को भी हम इवैल्यूएट कर रहे हैं कि स्टूडेंट्स एक्चुअली प्रोग्रेस कर रहा है कि नहीं, क्या उसका लर्निंग गैप कुछ है, यदि लर्निंग गैप है कैसे टीचिंग को इम्प्रूव किया जाएगा और उसका लर्निंग में इम्प्रूव किया जाएगा। तो ये तो यहाँ पर क्या है, स्टूडेंट्स का नॉलेज, स्किल्स, एटीट्यूड्स, उसका ओवरऑल डेवलपमेंट को चेक किया जाता है। जैसे मैं एक एग्जांपल दिया कि आप एक यूनिट है, एक दो सब्जेक्ट का एक यूनिट को खत्म किया और उसके ऊपर एक माइक्रो टेस्ट की असेसमेंट टेस्ट कर दिया। उससे आप डिटेक्ट किया कि चाइल्ड जो स्टूडेंट्स का डेप्थ क्या है, क्या द स्टूडेंट्स एक्चुअली दे अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट्स प्रॉपरली, क्या उनके ऊपर उनका कंप्लीट नॉलेज है, क्या उसको वो रिकनेक्ट कर सकते हैं अदर कॉन्सेप्ट के साथ, क्या वो उसको प्रॉपरली क्लैरिफाई कर सकते हैं, क्या वो प्रॉपरली एलाबोरेट कर सकते हैं, क्या वो कॉन्सेप्ट को यूज करके कोई न्यू आइडिया वो क्रिएट कर सकते हैं। तो उसमें हम डिटेक्ट कर पाएंगे, स्टूडेंट्स का लर्निंग गैप को भी डिटेक्ट कर पाएंगे, लर्निंग डिफिकल्टीज को भी डिटेक्ट कर पाएंगे और उसको देख के हम कुछ रिमेडियल मेजर्स भी ले सकते हैं। मगर फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है, कॉन्टिन्यूअसली चाइल्ड को इवैल्यूएट किया जाता है, कॉन्टिन्यूअसली चाइल्ड को जज किया जाएगा, उसका लेवल क्या है, क्या वो प्रोग्रेस कर रहा है कि नहीं, क्या वो इंप्रूव कर रहा है कि नहीं। ठीक है, तो एक फाइनल जजमेंट नहीं है, एक ये एक ऑनगोइंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में स्टूडेंट्स को इवैल्यूएट किया जाएगा। ठीक है, तो ये एक मॉनिटरिंग फेज है जिसको हम प्रॉपरली रेगुलरली टीचर्स मॉनिटर करता रहेगा। ठीक है, इट मीन्स स्टूडेंट्स को। ठीक है, तो उसमें एग्जाम्पल दिया है कि ए टीचर गिव्स ए शॉर्ट क्विज आफ्टर टीचिंग ए टॉपिक। आप एक टॉपिक इट मीन्स टीचिंग को खत्म किया, एक शॉर्ट क्विज कंडक्ट किया। इफ मेनी स्टूडेंट्स मेक द सेम मिस्टेक, आप देख रहे हो क्विज में मैक्सिमम स्टूडेंट्स एक्चुअली सेम मिस्टेक कर रहे हैं, द टीचर रीटीचेस द कॉन्सेप्ट अगेन, क्योंकि टीचर डिटेक्ट किया कि एक्चुअली मेजॉरिटी स्टूडेंट्स दे कुड नॉट अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट प्रॉपरली, सो उसको वो रीटीच करेगा। दिस इज ए फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन। सो इमीडिएटली वो फीडबैक देगा और उसको रीटीच करेगा, उसके हिसाब से वो नेक्स्ट उसका जो लेसन प्लान को डिजाइन करेगा। ठीक है, तो फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन बहुत प्रकार का क्वेश्चन थोड़ा ट्विस्ट होकर के आ रहा है। ये एक ऑनगोइंग इट मीन्स लर्निंग प्रोसेस में स्टूडेंट्स को इवैल्यूएट किया जाता है और कंटिन्यूअसली स्टूडेंट्स को मॉनिटरिंग किया जाता है। इट मीन्स कंटिन्यूअसली स्टूडेंट्स का जो नॉलेज है, स्किल है, उनका एटीट्यूड है, ओवरऑल डेवलपमेंट को एनालाइज किया जाता है। ये एक फाइनल जजमेंट नहीं है, ओनली इम्प्रूवमेंट के लिए, ओनली टू जज द इम्प्रूवमेंट ऑफ द चाइल्ड, इट मीन्स फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन है। तो आफ्टर कंप्लीशन ऑफ एवरी यूनिट की लेसन द टीचर कंडक्ट द टेस्ट और उसमें वो डिटेक्ट करता है कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स एक्चुअली दे आर डूइंग द सेम मिस्टेक, तो वो कॉन्सेप्ट को रीटीच करेगा। तो दिस इज ए फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन। ठीक है, नेक्स्ट वन, अनदर वन, प्लेसमेंट इवैल्यूएशन। प्लेसमेंट इवैल्यूएशन क्या है? जब चाइल्ड एंटर करेगा
न्यू इट मीन्स एकेडमिक में एंटर करेगा। आप देखा होगा कि जो सपोज जेई एग्जाम होता है, जी एग्जाम होता है कि नीट एग्जाम होता है, उसमें रैंक मिलता है। सपोज जी एग्जाम में आप आईआईटी में एडमिशन लेंगे तो जिनका हाईएस्ट रैंक रहेगा उनको कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग मिलेगा। तो इस तरीके का जो एग्जाम होता है कि सपोज आपका इसका एंट्रेंस एग्जाम होता है, बैचलर इन एजुकेशन का उसका एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है। तो उसमें क्या है, प्लेसमेंट एवेल्युएशन क्या है, क्या स्टूडेंट्स का क्या एग्जिस्टिंग नॉलेज है। यदि वो एंटर करेंगे तो उनको कौन सा कोर्स उनको दिया जाएगा। ठीक है, जैसे मैं बताया कि जो जी एग्जाम होता है तो जिनका जी एडवांस में टॉप रैंक रहता है, ठीक है, तो वो उनको कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग मिलेगा। तो इसी के हिसाब से कोई किसको मैकेनिकल मिलेगा, सपोज किसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग के ऊपर मिलेगा, किसको सपोज कंप्यूटर साइंस मिलेगा और साइबर सिक्योरिटी मिलेगा। तो ये सब चीज जो है मार्क के हिसाब से आता है। तो इसमें क्या है, ये जो टेस्ट होता है, जैसे आपका नीट में सो आपका अच्छा मार्क रहेगा तो एक अच्छा कॉलेज आपको मिलेगा। कि आपका सीयूईटी एग्जामिनेशन है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, इसमें भी आपका मार्क के हिसाब से आपको आप कॉलेज चूज करेंगे और आपका सब्जेक्ट को आप चूज करेंगे। तो ये प्लेसमेंट टेस्ट है। तो आपको न्यू एकेडमिक में एंटर करना है तो इसमें एक्चुअली आप जो टेस्ट कंडक्ट होता है, ओके, तो आपका लेवल, आपको जज किया जाता है कि आपका लेवल क्या है। तो उसके हिसाब से आपको कोर्स चूज करना पड़ेगा, वो है प्लेसमेंट एवेल्युएशन। उसको हम डिटेल्स में देखेंगे। आप देखिए, प्लेसमेंट एवेल्युएशन इज कंडक्टेड बिफोर स्टार्टिंग ए न्यू कोर्स और इंस्ट्रक्शन टू असेस ए स्टूडेंट्स एंट्री बिहेवियर, देयर एग्जिस्टिंग नॉलेज, स्किल्स, इंटेलिजेंस, एप्टीट्यूड, मोटिवेशन, इंटरेस्ट। क्या उनका एग्जिस्टिंग नॉलेज है, क्या उनका एग्जिस्टिंग स्किल है, इंटेलिजेंस क्या है, उनका एप्टीट्यूड क्या है, एटीट्यूड क्या है, मोटिवेशन क्या है, इंटरेस्ट क्या है। तो बिफोर स्टार्टिंग ए न्यू कोर्स, ओके, बिफोर स्टार्टिंग ए न्यू कोर्स और इंस्ट्रक्शन, तो स्टूडेंट्स का एंट्री बिहेवियर को असेस किया जाता है। आपको मैं बताया जो ये जो जी एग्जाम होता है कि नीट एग्जाम होता है और इसमें सीयूईटी एग्जाम होता है, तो इसी से जजमेंट मिलता है कि आप सपोज जी एडवांस एग्जाम दिया तो आपको कौन सा स्ट्रीम मिलेगा। ठीक है, वैसा ही नीट में कौन सा बेस्ट कॉलेज आपको मिलेगा, कि आपका सीयूईटी में कौन सा बेस्ट कॉलेज आपको मिलेगा और सब्जेक्ट मिलेगा। तो ये एक एंट्री लेवल टेस्ट होता है और उसको इवैल्यूएट किया जाता है। पर्पज क्या है, टू डिटरमाइन वेयर द स्टूडेंट शुड बी प्लेस्ड इन द इंस्ट्रक्शनल सीक्वेंस। इंस्ट्रक्शनल सीक्वेंस में एक्चुअली स्टूडेंट को कहां पर प्लेस किया जाएगा। मैं अभी बताया जो जैसे जी एडवांस आप दे रहे हो, जी एडवांस में आपका मार्क के हिसाब से आपको आईआईटी या बढ़िया रैंक रहेगा तो टॉप रैंक का आईआईटी आपको मिलेगा और वहां पर सीएससी मिलेगा। और सिमिलरली जो आप जी एडवांस दे दिया मगर जो जी का जो एग्जाम फर्स्ट फेज एग्जाम हुआ था तो उसके हिसाब से आपको एनआईटी में मिलेगा। ठीक है, मार्क के हिसाब से तो एनआईटी में मिलेगा तो आपको कौन सा स्ट्रीम मिलेगा। तो ये है टू डिटरमाइन वेदर द स्टूडेंट शुड बी प्लेस्ड इन द इंस्ट्रक्शनल सीक्वेंस टू सिलेक्ट द मोस्ट सुइटेबल कोर्स और मोड ऑफ इंस्ट्रक्शन फॉर द स्टूडेंट। आपके लिए क्या ये जो एंट्री लेवल टेस्ट होगा और उसमें आपको इवेल्युएट किया जाएगा आपके लिए सुइटेबल कोर्स क्या होगा। टू चेक वेदर द स्टूडेंट हैज द रिक्वायर्ड नॉलेज एंड स्किल्स टू बिगिन द कोर्स, क्या आपके पास रिक्वायर्ड नॉलेज है, स्किल है टू बिगिन द कोर्स। ओके, एग्जाम्पल भी दिया है कि जो ये बैचलर इन एजुकेशन एंट्रेंस टेस्ट जो बीड एग्जाम इज कंडक्टेड टू असेस स्टूडेंट्स एंड सिलेक्ट देम फॉर एडमिशन टू द बीड कोर्स। ठीक है, मैं बताया ये प्लेसमेंट टेस्ट में यदि क्वेश्चन आता है जो प्लेसमेंट एवेल्युएशन में, तो यहाँ पर जो जजमेंट होता है जो एंट्री लेवल, क्या आप इट मीन्स जो एंट्री करोगे क्या टू बिगिन द कोर्स, क्या आपके पास उतना स्किल है, क्या आपके पास उतना एफिशिएंसी है, किस तरीके का कोर्स आपके लिए सुइटेबल है। ठीक है, ये सब एक्चुअली
प्लेसमेंट एवेल्युएशन है। ठीक है, तो जब न्यू कोर्स स्टार्ट होगा तो एक एंट्री टेस्ट होता है, मैं कुछ एग्जांपल्स भी दिया। ठीक है, उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। नेक्स्ट वन, डायग्नोस्टिक एवेल्युएशन, इसके ऊपर बार बार क्वेश्चन आ रहा है। देखिए डायग्नोस्टिक एवेल्युएशन क्या है, फॉर्मेटिव टेस्ट हुआ, फॉर्मेटिव टेस्ट 1 2 ऐसे हो रहा है, मगर चाइल्ड एक्चुअली परसिस्टेंटली, चाइल्ड एक्चुअली इट मीन्स कुड नॉट रीच द टारगेट अकॉर्डिंग टू द एक्सपेक्टेशन ऑफ द टीचर। परसिस्टेंटली वो रॉन्ग कर रहा है, रिकरेंटली बार बार वो रॉन्ग कर रहा है। ठीक है, तो जब फॉर्मेटिव टेस्ट जो है, फॉर्मेटिव डायग्नोस्टिक के बीच में डिफरेंस है। फॉर्मेटिव में क्या है, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ एवरी यूनिट द टीचर डिटेक्ट करता है कि क्या लर्निंग लेवल है, क्या चाइल्ड का प्रोग्रेस है, तो इमीडिएटली वो फीडबैक देता है। ठीक है, मगर डायग्नोस्टिक क्या है, रिपीटेडली जब चाइल्ड फेल होता है, रिपीट फॉर्मेटिव टेस्ट 1 2, जो यूनिट टेस्ट 1 2 3 4, मगर रिपीटेडली द चाइल्ड फेल हो रहा है। ठीक है, तो वहां पर एक्चुअली उसमें उसको कहा जाएगा डायग्नोस्टिक एवेल्युएशन। ठीक है, तो उसमें क्या है ना, उसको रिमेडियल मेजर्स चाहिए। ठीक है, तो ये डायग्नोस्टिक एवेल्युएशन के ऊपर हम देखेंगे। इट इज ए स्पेशलाइज्ड असेसमेंट, इट इज ए स्पेशलाइज्ड असेसमेंट conducted to pinpoint the exact root cause of persistent recurring learning difficulties, that standard formative feedback and regular corrective teaching failed to resolve। देखिए इसमें क्या है, रेगुलरली फॉर्मेटिव टेस्ट हुआ, फॉर्मेटिव टेस्ट में आपको फीडबैक दिया गया और रेगुलरली करेक्टिव मेजर्स दिया गया। फॉर्मेटिव टेस्ट में जो फॉर्मेटिव टेस्ट है कि यूनिट टेस्ट में आफ्टर कंप्लीशन ऑफ फॉर्मेटिव टेस्ट यूनिट टेस्ट, तो आपको फीडबैक दिया गया और आपको करेक्टिव इट मींस टीचिंग मेथड्स यूज किया गया, आपको इन्फॉर्म कर दिया गया कि किस एरिया में इट मींस यू आर डूइंग रॉन्ग। तो एवरीथिंग करने के बाद जब एक स्पेशलाइज्ड असेसमेंट टेस्ट हुआ, एक स्पेशलाइज्ड असेसमेंट टेस्ट होता है, उसमें पर्टिकुलरली डिटेक्ट करना है कि क्या एग्जैक्ट रीजन क्या है, वो चाइल्ड क्यों परसिस्टेंटली और रिकरेंटली वो उसका लर्निंग डिफिकल्टीज है, क्यों वो बार बार एक्चुअली किस एरिया में वो बार बार रॉन्ग कर रहा है। ठीक है, तो उसके लिए एक स्पेशलाइज्ड टेस्ट होगा, क्योंकि डिफरेंट टाइप ऑफ फॉर्मेटिव टेस्ट हुआ, करेक्टिव मेजर्स दिया गया। ठीक है, मगर स्टिल देन द चाइल्ड एक्चुअली कुड नॉट रीच द एक्सपेक्टेशन, फिर भी वो चाइल्ड रॉन्ग कर रहा है, तो उसके लिए एक स्पेशलाइज्ड असेसमेंट हुआ। तो स्पेशलाइज्ड जो असेसमेंट हुआ उसमें पर्टिकुलरली डिटेक्ट किया जाएगा क्यों चाइल्ड एक्चुअली परसिस्टेंटली रिकरेंट बार बार क्यों वो भूल कर रहा है। ठीक है, तो इतना फीडबैक दिया गया फॉर्मेटिव असेसमेंट के बाद, रेगुलर करेक्टिव मेजर्स किया गया, टीचिंग मेथड्स टीचर चेंज किया और टीचर ट्राई किया उसका लर्निंग इंप्रूवमेंट के लिए, फिर भी वो चाइल्ड इंप्रूव नहीं कर रहा है, तो उसके लिए एक स्पेशलाइज असेसमेंट टेस्ट हुआ और उसमें पर्टिकुलरली डिटेक्ट होगा, कम मार्क तो है मगर रीजन क्या है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस, फॉर व्हाट रीजन एक्चुअली द चाइल्ड एक्चुअली रिपीटेडली फेल्ड, द चाइल्ड एक्चुअली कुड नॉट गिव द आंसर प्रॉपरली। ठीक है, तो its ultimate goal is to formulate targeted remedial instruction and therapeutic interventions। कभी कभी क्या है, सपोज उसका बोर्ड ठीक से रीड नहीं कर पा रहा है, कुछ विजनरी प्रॉब्लम है कि कुछ ईयर प्रॉब्लम है, तो वो ठीक से सुन नहीं पा रहा है। ठीक है, कि उसको वही है विजन प्रॉब्लम से उसको स्पेक्टेकल चाहिए, कि वो ठीक से उसका कुछ हियरिंग प्रॉब्लम है, कि और कुछ एक्चुअली उसका कॉन्सेप्ट जो है वो ठीक से माइंड में रिटेन नहीं कर पा रहा है। ठीक है, तो कि उसको थोड़ा काउंसलिंग चाहिए, मोटिवेशन चाहिए, क्योंकि उसका इंटरेस्ट कम है कि मोटिवेशनल लेवल कम है। ओके, वो एक्चुअली ही नो इट मींस ही लूज कंसंट्रेशन इन द क्लासरूम, जो भी है। तो डायग्नोस्टिक एवेल्युएशन ये है। तो फॉर्मेटिव डायग्नोस्टिक में डिफरेंस है। डायग्नोस्टिक एवेल्युएशन क्या है, जब चाइल्ड एक्चुअली आफ्टर ईच एंड एवरी फॉर्मेटिव एवेल्युएशन द चाइल्ड गॉट फीडबैक, but teachers actually they changed their teaching methods,
and they tried actually for the learning improvement of the child, मगर still then actually the child could not improve. तो इसके लिए एक स्पेशल एक डायग्नोस्टिक टेस्ट हुआ और उसमें पर्टिकुलरली डिटेक्ट किया गया कि किस कारण के वजह से एक्चुअली द चाइल्ड एक्चुअली रिपीटेडली फेल हो रहा है, कम मार्क रख रहा है. ठीक है, तो अल्टीमेट गोल है रिमेडियल इंस्ट्रक्शन, उसको रिमेडियल टीचिंग चाहिए. ठीक है, तो उसमें की फीचर्स देखिए, एड्रेसेस अनरिजॉल्व डेफिसिट. कोई सपोज डेफिसिट जैसे इसमें कुछ एग्जांपल्स दे दिया है. देखिए, एक एड्रेसेस अनरिजॉल्व डेफिसिट व्हाइल फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन प्रोवाइड्स ऑनगोइंग एडजस्टमेंट्स ड्यूरिंग डेली लेसन्स. Diagnostic evaluation steps in when a student repeatedly fails to grasp a concept despite multiple teaching approaches. Formative evaluation के बाद रेगुलरली फीडबैक मिल रहा है. आफ्टर एवरी लेसन फॉर्मेटिव evaluation हो रहा है और टीचर्स एक्चुअली they are doing some adjustment measures, okay, correct measures. So diagnostic evaluation step in, और व्हेन स्टूडेंट रिपीटेडली, जब चाइल्ड रिपीटेडली फेल हो रहा है, ठीक है, तो उसके लिए इट मींस डायग्नोस्टिक टेस्ट हुआ और उसको चाइल्ड को एवेल्युएट किया गया कि व्हाई एक्चुअली द चाइल्ड इट मींस प्रॉपरली डज नॉट ग्रास्प ए कॉन्सेप्ट. क्यों प्रॉपरली वो कॉन्सेप्ट को ग्रास्प नहीं कर पा रहा है, कॉन्सेप्ट को एक्चुअली ही इज अनएबल टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट प्रॉपरली डिस्पाइट मल्टीपल टीचिंग अप्रोचेस. तो उसको सॉल्व करने के लिए जो रिमेडियल मेजर्स लिया जाएगा, ये जो एड्रेस करने के लिए, ये जो अनरिजर्व डेफिसिट है, फॉर्मेटिव एवेल्युएशन में बहुत प्रकार का मेजर्स लिया गया मगर स्टिल देन द चाइल्ड फेल्ड. नेक्स्ट वन, सेकेंड पॉइंट है पिन पॉइंट्स रूट कॉजेस. ये जो डायग्नोस्टिक एवेल्युएशन हो रहा है कि मेन कारण क्या है, क्या उसका विजुअल और ऑडिटरी प्रोसेसिंग डेफिसिट है, क्या उसका कॉन्सेप्चुअल गैप्स है, क्या उसका मेमोरी डेफिसिट है, क्या फ्लॉड रीडिंग स्ट्रैटेजीज है. तो क्या कारण है, किस कारण के वजह से द चाइल्ड इज रिपीटेडली फेल्ड. द चाइल्ड कुड नॉट ग्रास्प द कॉन्सेप्ट प्रॉपरली, द चाइल्ड कुड नॉट अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट प्रॉपरली, द चाइल्ड एक्चुअली कुड नॉट मेक इंप्रूवमेंट इन एकेडमिक परफॉर्मेंस. तो क्या कारण है, रूट कॉज को निकाला जाएगा, फिर रिमेडियल मेजर्स एक्चुअली इनिशिएट किया जाएगा. कुछ स्पेशलाइज्ड टूल्स, जब मेन कारण को डिटेक्ट किया गया तो स्पेशलाइज्ड टूल्स है, क्या है, यूजेस कस्टमाइज्ड डायग्नोस्टिक टेस्ट की, बिहेवियरल चेकलिस्ट, क्लिनिकल इंटरव्यूज, फिजियोलॉजिकल स्क्रीनिंग्स लाइक विजन और हियरिंग टेस्ट. सो डिफरेंट टूल्स को एक्चुअली स्पेशलाइज्ड टूल्स को यूज किया गया. ओके, नेक्स्ट वन लीड्स डायरेक्टली टू रिमेडिएशन, सर्व्स एज द medical equivalent of a pathological test identifying the exact deficiency so the educator can prescribe a precise remedial curriculum or individual education plan. तो लास्ट वन है रिमेडियल मेजर्स. ठीक है, तो डायग्नोस्टिक टेस्ट के ऊपर जो क्वेश्चन आएगा आपको देखना है कि द चाइल्ड इज रिपीटेडली फेल्ड, परसिस्टेंटली फेल्ड, रिकरेंटली फेल्ड. तो उस केस में क्या है ना, एक स्पेशलाइज्ड डायग्नोस्टिक असेसमेंट होता है और उसमें पर्टिकुलरली डिटेक्ट किया जाएगा कि क्या कारण है. ओके, मेन रीजन को वहां पर पिन पॉइंट किया जाएगा, डिटेक्ट किया जाएगा. क्या उसका कुछ विजुअल सपोज ऑडिटरी डेफिसिट है, क्या उसका कॉन्सेप्ट, कुछ कॉन्सेप्ट को वो ग्रास्प नहीं कर पा रहा है, क्या उसका कुछ मेमोरी डेफिसिट है, क्या वो उसका रीडिंग स्ट्रैटेजी में फ्लॉ है. तो उस केस में यदि कुछ फिजिकल प्रॉब्लम होता है तो वहां पर डॉक्टर्स को कंसल्ट किया जाएगा और सपोज मोटिवेशन बूस्टिंग के लिए सपोज एक्सपर्ट काउंसलर्स को कंसल्ट किया जाएगा. देन अदरवाइज एक्चुअली रिमेडियल क्लासेस कंडक्ट किया जाएगा. ओके, द टीचर्स एक्चुअली दे कंडक्ट स्पेशल रिमेडियल क्लासेस फॉर द चिल्ड्रन. तो ये है डायग्नोस्टिक एवेल्युएशन. ठीक है, नेक्स्ट वन है सम्मेटिव. ये बहुत इजी है. सम्मेटिव एवेल्युएशन क्या है, सपोज आफ्टर एंड ऑफ द एनुअल एग्जामिनेशन, ये बोर्ड एग्जामिनेशन, एनुअल एग्जामिनेशन, अचीवमेंट टेस्ट. ओके, तो उसमें क्या है, सम्मेटिव जो आफ्टर एनुअल एग्जामिनेशन, सम्मेटिव एवेल्युएशन के बाद कोई रिमेडियल मेजर्स नहीं लिया जाएगा.
क्योंकि वो आफ्टर एनुअल एग्जामिनेशन वहीं तो प्रमोशन होता है। तो समेटिव एवेल्युएशन के ऊपर देखिए, इट इज कंडक्टेड, देखिए इट इज कंडक्टेड एट द एंड ऑफ द टॉपिक, यूनिट, कोर्स, सेमिस्टर और एकेडमिक ईयर। पूरा एकेडमिक ईयर में जो सिलेबस था वो खत्म हो गया, फिर जो एनुअल एग्जामिनेशन होगा टू जज द फाइनल लर्निंग आउटकम्स। फाइनल लर्निंग आउटकम्स को जज किया जाएगा एंड डिटरमाइन वेदर द इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स हैव बीन अचीव्ड। ओके, पूरा कोर्स जो सिलेबस है खत्म हो गया, एनुअल एग्जामिनेशन हुआ, तो वहां पर जज किया जाएगा फाइनल लर्निंग आउटकम्स। क्या चाइल्ड का क्या लेवल है, एकेडमिक परफॉर्मेंस का क्या लेवल है, क्या उसका पोजीशन है, क्या वो जो इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स है क्या वो अचीव किया। ओके, वो जो लर्न किया क्या उसके ऊपर पूरा उसका अंडरस्टैंडिंग है, नॉलेज है, उसको वो अप्लाई कर सकता है, क्या उसको वो क्लैरिफाई प्रॉपरली कर सकता है, क्या वो उसको एलाबोरेट प्रॉपरली कर सकता है, चाहे मैथमेटिक्स हो, साइंस हो, सोशल साइंस हो, इंग्लिश हो। पूरा कोर्स कंप्लीट हो गया, पूरा कोर्स, सपोज एक स्टैंडर्ड 9 का चाइल्ड, उसका पूरा कोर्स खत्म हो गया, वो भी स्टैंडर्ड 10 को जाएगा, पूरा 9 का कोर्स, यू नो दैट सम 9 का जो चैप्टर से वो लिंक होता है 10th के साथ, वैसे ही करिकुलम को डिजाइन किया गया है। तो जब 9th का पूरा सिलेबस खत्म हो गया, सो उस कितना परसेंटेज मिला, कौन सा सब्जेक्ट में कितना कितना मार्क मिला, क्या उसका एकेडमिक परफॉर्मेंस है, क्या उसका एकेडमिक लेवल है, क्या जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स था क्या वो अचीव किया, क्या 9th में जो मैथ्स चैप्टर्स है था क्या उसके ऊपर कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा वो कर पाएगा, क्योंकि वो चैप्टर्स, वही चैप्टर लिंक है 10th के साथ। वो 9th में सपोज जैसे ज्योमेट्री है कि त्रिगोनोमेट्री है कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है कि अलजेब्रा है, उसके ऊपर उसका प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग नहीं है, तो वो फिर 10th में जाकर कैसे, इट मींस क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे सॉल्व करेगा, कि हाइट एंड डिस्टेंस कैसे सॉल्व करेगा, कि ज्योमेट्री के ऊपर कैसे सॉल्व करेगा, जो उसका जो इट मींस थ्योरम्स है वो कैसे सॉल्व करेगा, क्योंकि 9 के साथ लिंक है। तो एक इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव अचीव किया कि नहीं उसको डिटेक्ट किया जाएगा। ओके, लर्निंग, फाइनल लर्निंग आउटकम्स को डिटेक्ट किया जाएगा, और वो वेदर एक्चुअली द चाइल्ड अचीव्ड इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स और नॉट। पर्पस देख लीजिए, टू असेस द फाइनल परफॉर्मेंस और प्रोडक्ट ऑफ स्टूडेंट्स। चाइल्ड का, स्टूडेंट का फाइनल परफॉर्मेंस क्या है, टू डिटरमाइन द एक्सटेंट टू व्हिच लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स आर अचीव्ड और नॉट, टू मेक डिसीजंस अबाउट पास और फेल, वही एनुअल एग्जामिनेशन में पास, फेल, प्रमोशन, मेरिट, सर्टिफिकेशन, और इसमें कोई रिमेडियल टीचिंग नहीं है, नो रिमेडियल टीचिंग, क्योंकि कोर्स तो खत्म हो गया ना, क्या वो पास हुआ ना फेल हुआ, उसको प्रमोशन हो जाएगा नेक्स्ट क्लास को, अच्छा मार्क है, सपोज रैंक है, उसको इट मींस मेरिट में है तो उसको प्राइज मिलेगा, तो उसमें नो रिमेडियल टीचिंग। ठीक है, तो आपको याद रखना है एट द एंड ऑफ द एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन खत्म होने के बाद जो चाइल्ड को इवेल्युएट किया जाता है वो है समेटिव इवेल्युएशन। ठीक है, कॉमन टूल्स जो है समेटिव इवेल्युएशन का, ये एनुअल एंड बोर्ड एग्जामिनेशन, स्टैंडर्डाइज्ड अचीवमेंट टेस्ट, और फाइनल प्रोजेक्ट अप्राइजल्स एंड वाइवा। बस, जैसे ए बीड स्टूडेंट में राइट ए डिसर्टेशन ऑन इफेक्ट ऑफ डिजिटल लर्निंग ऑन स्टूडेंट्स मैथमेटिक्स अचीवमेंट, और थेसिस, पीएचडी स्टूडेंट का जो थेसिस है इवैल्यूएटेड बाय एक्सटर्नल एग्जामिनर्स। तो ये सब है फाइनल प्रोजेक्ट अप्राइजल्स एंड वाइवा, बस कि कोई स्टैंडर्डाइज्ड अचीवमेंट टेस्ट, एनुअल एंड बोर्ड एग्जामिनेशन, ये सब रियल एग्जाम्पल्स है समेटिव इवैल्यूएशन का। ठीक है, नेक्स्ट वन एक्सटर्नल इवैल्यूएशन। ये बहुत कॉमन है। एक्सटर्नल इवैल्यूएशन क्या है, कभी कभी जो बोर्ड एग्जाम होता है, बोर्ड एग्जाम का कॉपी एक्सटर्नल एग्जामिनर्स चेक करते हैं, जो स्कूल का जो टीचर है वो चेक नहीं करेंगे, तो बोर्ड एग्जाम का कॉपी आउटसाइड एग्जामिनर्स चेक करेंगे, तो बहुत इम्पार्शियल होता है, जो आपको परसेंटेज मिला, कि आपका क्या लेवल है, कितना परसेंटेज मिला, कौन सा सब्जेक्ट में कितना, तो वो बहुत इम्पार्शियल है, और उसमें वही है एक्सटर्नल एवेल्युएशन, इट इज एन एवेल्युएशन in which the evaluators or examiners are from outside the instruction or group being evaluated। तो आउटसाइड एवेल्युएटर्स होते हैं, मैं अभी बताया, आप बोर्ड एग्जाम दे रहे हो तो आपका आंसर सीट को और कोई एवेल्युएटर्स, आउटसाइड एवेल्युएटर्स चेक करेंगे,
द टीचर हु टीचेस द स्टूडेंट्स डज नॉट एवेल्युएट और एग्जामिन, जो टीचर आपको पढ़ा रहे हैं वो तो आपका एग्जामिनर नहीं रहेंगे, वो आपको एवेल्युएट नहीं करेंगे। स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस इज जज्ड बाय आउटसाइड और इंडिपेंडेंट एग्जामिनर्स। सो इसमें क्या है, बायस रिड्यूस हो जाएगा और इंश्योर इम्पार्शियलिटी। ये तो बहुत कॉमन चीज है, इसमें इतना डिफिकल्टी नहीं है। नेक्स्ट वन आ जाएगा इंटरनल एवेल्युएशन। इंटरनल एवेल्युएशन में आप देखा होगा जो टेस्ट होता है, क्लास टेस्ट है कि यूनिट टेस्ट है, वीकली टेस्ट, मंथली टेस्ट, क्वार्टरली टेस्ट ही होता है। तो आपका टीचर, दोज टीचर्स एक्चुअली टीचिंग टू द स्टूडेंट्स, द सेम टीचर एवेल्युएट द स्टूडेंट्स, द सेम टीचर असेस द स्टूडेंट्स। वो देखेंगे कि चाइल्ड का क्या प्रोग्रेस है, क्या वीकनेस है, क्या स्ट्रेंथ है, कौन सा चाइल्ड को रिमेडियल मेजर चाहिए, कौन सा चाइल्ड का एकेडमिक परफॉर्मेंस बेटर है और उसका जो डेफिनेटली फ्यूचर में उसका एकेडमिक परफॉर्मेंस बेटर होगा। तो ये इंटरनल एवेल्युएशन में एक्चुअली दो सेम टीचर, आपका टीचर, दो टीचर्स टीचिंग टू द स्टूडेंट्स, वही क्वेश्चन पेपर प्रिपेयर करेगा, वही कॉपी को एवेल्युएट करेगा, कॉपी को चेक करेगा और चाइल्ड को जज करेगा। ठीक है, तो नो एक्सटर्नल एग्जामिनर्स इन्वॉल्व्ड, helps to know students progress, helps to identify weak areas of students, enables remedial teaching for weaker students, same thing में बताया, helps the teacher identify his or her own teaching weakness, खुद का जो टीचर का क्या वीकनेस है। सपोज जो क्लास का सब्जेक्ट एवरेज कम है, आपका सपोज मैथ्स टीचर वो देख रहा है, उसका क्लास का सब्जेक्ट एवरेज है 60%, तो वो एक्सपेक्ट कर रहा था 80% होना चाहिए, मगर क्लास एवरेज 60% हो गया। तो वो डिटेक्ट करेगा कि मेरा टीचिंग मेथड्स में, ठीक है, जो मेरा टीचिंग स्ट्रैटेजी था क्या उसमें वीकनेस है, तो मेरा क्लास एवरेज इतना कम हो गया। तो हेल्प्स बिल्ड ए स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन फॉर स्टूडेंट्स। तो ये इंटरनल एवेल्युएशन का बात है। ठीक है, चलो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एवेल्युएशन के ऊपर बताया। अभी थोड़ा देखेंगे कॉग्निटिव डोमेन, इसको क्यों ऐड किया, क्योंकि उसमें दो चीज को हम डिस्कस करेंगे आज, कन्वर्जेंट थिंकिंग एंड डाइवर्जेंट थिंकिंग। तो वो एक्चुअली इंटेलेक्चुअल एबिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये जो कॉग्निटिव डोमेन है वो एक्चुअली इट इज द इंटेलेक्चुअल एबिलिटी ऑफ द स्टूडेंट। ये जो बिलीव करता है, ये बिलीव करता है नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, देन थिंकिंग, देन सॉल्विंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग। ठीक है, नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, थिंकिंग, सॉल्विंग। तो क्या चाइल्ड का क्या इंटेलेक्चुअल एबिलिटी है, ठीक है, तो वो जो लर्न किया, क्या जो कॉन्सेप्ट को लर्न किया उसके ऊपर क्या उसका कमांडिंग है, ठीक है, उसके ऊपर क्या नॉलेज है, उसके ऊपर क्या उसका अंडरस्टैंडिंग है, उसको वो कॉन्सेप्ट को वो अप्लाई करके वो और कुछ नया आइडिया क्रिएट कर पा रहा है कि नहीं। तो ये सब कॉग्निटिव डोमेन रिलेटेड है, उसको थोड़ा देखेंगे। देखिए, कॉग्निटिव डोमेन रिफर्स टू द एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स रिलेटेड टू द डेवलपमेंट ऑफ मेंटल एंड इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज। ये इसके ऊर को मेंटल एंड इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज। तो हम वहां पर चाइल्ड को पर्टिकुलर स्टूडेंट को डिटेक्ट करेंगे कि उसका क्या मेंटल एंड इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज है। ठीक है, तो इसमें क्या है, इट इंक्लूड्स द एबिलिटी टू नो एंड रिकॉल द फैक्ट्स। कोई फैक्ट्स को वो रिकॉल कर पा रहा है कि नहीं, क्या वो फैक्ट के ऊपर कुछ उसका नॉलेज है कि नहीं, क्या वो फैक्ट को डिफाइन कर पा रहा है कि नहीं, उसका अंडरस्टैंडिंग क्या है, उसके ऊपर थिंक एंड रीजन, वो उसके ऊपर एक्चुअली कोई फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला को यूज करके सीक्वेंस वाइज एक इट मींस अल्टीमेट कंक्लूजन में रीच कर रहा है, प्रॉब्लम को आराम से सॉल्व कर पा रहा है, डेवलप लोअर, मिडिल एंड हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स। तो ये सब कॉग्निटिव डोमेन में आता है। तो बेसिकली मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द कॉग्निटिव डोमेन, ये एक एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव है कि टू मेजर द डेवलपमेंट ऑफ मेंटल एंड इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज। सिंपल वर्ड्स देखिए, वर्ड्स में कॉग्निटिव डोमेन है नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग। कॉन्सेप्ट के जो फैक्ट्स है उसके ऊपर क्या उसका नॉलेज है, कितना अंडरस्टैंडिंग है, वो उसको प्रॉपर्ली क्लैरिफाई कर पा रहा है कि नहीं। अच्छा, थिंकिंग, वो एक फॉर्मूला रिमेंबर किया, रिकॉल किया और उसको वो यूज करके प्रॉब्लम को सॉल्व कर पा रहा है कि नहीं। तो ये है प्रॉपर स्टेप वाइज, प्रॉपर सीक्वेंस में, लॉजिकल मैनर एक्चुअली द चाइल्ड इज एबल टू सॉल्व द प्रॉब्लम। तो ये सब इसी का डेवलपमेंट को, मेंटल इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज का डेवलपमेंट को मेजर करने के लिए
जो इसको बोलते हैं कॉग्निटिव डोमेन, ठीक है। उसके ऊपर हम देखेंगे थिंकिंग स्किल्स, बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार क्वेश्चन आ रहा है, थिंकिंग स्किल्स रिक्वायर्ड इन कॉग्निटिव लर्निंग। थिंकिंग स्किल्स रिक्वायर्ड इन कॉग्निटिव लर्निंग, क्या क्या थिंकिंग स्किल्स है? फर्स्ट वन, कॉन्वर्जेंट थिंकिंग। कॉन्वर्जेंट थिंकिंग क्या है? बहुत हम डाइवर्जेंट कॉन्वर्जेंट देंगे कि कॉन्वर्जेंट में हमको जैसे एमसीक्यू क्वेश्चन है, मैं आपको थोड़ा क्लियर, एमसीक्यू क्वेश्चन में हमको एक फोर ऑप्शन है, हम एक ऑप्शन को चूज करेंगे, ठीक है। तो कॉन्वर्जेंट थिंकिंग जो है, सपोज मैं एक एग्जांपल देता हूं कॉन्वर्जेंट थिंकिंग के ऊपर, कि एक क्वेश्चन में पूछा कि सपोज व्हाई डिड प्लांट्स डाई। सपोज जैसे एक क्वेश्चन पूछा व्हाई डिड प्लांट्स डाई, सपोज मैं वाटर के ऊपर, पर्टिकुलर वाटर के ऊपर लिया, बहुत कुछ रीजन से मैं बोला कि सपोज फर्स्ट चीज एक्चुअली द प्लांट्स कुड नॉट गेट प्रॉपर क्वांटिटी ऑफ वाटर, कि द रूट्स ऑफ द प्लांट्स कुड नॉट ऑब्जर्व द वाटर, ठीक है। कि जो सॉइल था, ड्यू टू द ड्राई ऑफ द सॉइल, जो भी है वो सब वाटर रिलेटेड आप लेंगे, ठीक है। ओनली आप जितना भी आंसर देंगे वाटर रिलेटेड में। तो हम बहुत सो मेनी अदर फैक्टर्स आर देयर, कि सपोज आप देखेंगे इट मींस सोलर लाइट है, ओके, सनलाइट क्या है, कि कोई इंसेक्ट ने अफेक्ट किया प्लांट को, ठीक है, क्या प्लांट्स वीकनेस के वजह से, ठीक है। तो बहुत कुछ फैक्टर्स है, मगर यहां पर हम देखेंगे कन्वर्जेंट थिंकिंग क्या है, कि यदि क्वेश्चन पूछा व्हाई डिड प्लांट्स डाई, तो आपको एक पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट वाटर के ऊपर ले जाना है, कि द प्लांट्स एक्चुअली दे कुड नॉट गेट प्रॉपर क्वांटिटी ऑफ वाटर, कि द रूट्स ऑफ द प्लांट्स कुड नॉट ऑब्जर्व द वाटर, कि ड्यू टू द ड्राई ऑफ द सॉइल। आप समझ रहे हैं? तो ओनली एक, मगर डाइवर्जेंट आ जाएगा तो आप बहुत सो मेनी फैक्टर्स, वाटर एक फैक्टर है कि द प्लांट्स कुड नॉट गेट अप्रोप्रिएट क्वांटिटी ऑफ वाटर, कोई बोलेगा नहीं ड्यू टू लैक ऑफ सनलाइट, कोई बोलेगा कि इंसेक्ट्स एक्चुअली अफेक्टिंग द प्लांट्स, कि ड्यू टू वीकनेस ऑफ द प्लांट्स। तो ये बहुत कुछ फैक्टर्स आएगा, सो मेनी सॉल्यूशन, सो मेनी आइडियाज, वो डाइवर्जेंट है। कॉन्वर्जेंट एक पर्टिकुलर उसको आंसर चाहिए, जैसे मैं बताया कि एमसीक्यू क्वेश्चन में 4 ऑप्शंस है, आप एक ऑप्शन को चूज करेंगे, एक ऑप्शन को चूज करेंगे, ठीक है। एक ऑप्शन, सपोज ऑप्शन बी में जो है वो करेक्ट है, ठीक है। तो अच्छा, अभी उसको थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे। कन्वर्जेंट थिंकिंग, इट इज द एबिलिटी फैक्ट को यूज करना, डाटा कलेक्ट करना, प्रॉपर सीक्वेंस में जाना, लॉजिक मीन्स प्रॉपर सीक्वेंस, एंड नॉलेज टू अराइव एट वन करेक्ट और बेस्ट आंसर, वन करेक्ट और बेस्ट आंसर टू ए प्रॉब्लम। कोई प्रॉब्लम आपको पूछा गया, उसका फैक्ट्स को एनालाइज करना, आप उसको डाटा आपको चाहिए, फिर आप प्रॉपर स्टेप्स में जाइए जो लॉजिकल सीक्वेंस है, फिर आप अराइव हो जाइए करेक्ट और बेस्ट आंसर में, ठीक है। तो कोई मैथ्स का प्रॉब्लम आपको देता है, तो आप फॉर्मूला रिकॉल करो। तो सपोज एक मैं यहां पर देता हूं, मैथ्स के ऊपर कोई क्वेश्चन आया, आप फॉर्मूला को रिमेंबर करो और उसका क्या क्या स्टेप्स होगा, ओके, क्या स्टेप्स होगा, वो लॉजिकल प्रोसेस है, क्या क्या स्टेप्स होगा, कौन सा मेथड को आप फॉलो करोगे, और आपका मेन डेस्टिनेशन है कैसे करेक्ट आंसर मुझे मिलेगा, ठीक है। अच्छा, इट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय जेपी गुइलफोर्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। अच्छा, इट रिक्वायर्स लॉजिकल एंड क्रिटिकल थिंकिंग। लॉजिकल मीन्स एक्चुअली आपका स्टेप, जो मैथ्स प्रॉब्लम कर रहे हो तो स्टेप वाइज आपको जाना है। क्रिटिकल थिंकिंग क्या है? एनालाइज आपको करना है, कि जो एनालाइज आपको करना है, कि जो सपोज आपको कोई कॉन्सेप्ट दे दिया गया, जैसे मैं अभी बताया कि व्हाई डिड प्लांट्स डाई, आप एक पर्टिकुलरली वाटर को लेंगे, ओके, कि ड्यू टू द स्कार्सिटी ऑफ वाटर, कि द रूट्स ऑफ द प्लांट्स कुड नॉट ऑब्जर्व द वाटर, कि ड्यू टू लैक ऑफ रेनफॉल, कि ड्यू टू ड्राई ऑफ द सॉइल, जो भी रीजन लेंगे वाटर, तो वही है क्रिटिकल थिंकिंग, ओके। मगर पर्टिकुलर डायरेक्शन में आपको इतना सो मेनी आइडियाज नहीं चाहिए, सो मेनी सॉल्यूशंस नहीं चाहिए, ठीक है। वेराइटीज ऑफ सॉल्यूशन, देयर इज नो नीड ऑफ वेराइटीज ऑफ सॉल्यूशन, वेराइटीज ऑफ आइडियाज, वो नहीं चाहिए। तो इट रिक्वायर्स लॉजिकल एंड क्रिटिकल थिंकिंग रादर देन मच क्रिएटिविटी।
सपोज आपको कोई पूछेगा सेम क्वेश्चन डाइवर्जेंट में कि हाउ टू कंजर्व द वाटर इन द स्कूल, हाउ टू कंजर्व द वाटर, जैसे ये क्वेश्चन पूछा हाउ टू कंजर्व द वाटर, ओके, इन द स्कूल। आप कॉन्वर्जेंट में क्या है, आप एक चीज बोलेंगे वाटर हार्वेस्टिंग, एक पर्टिकुलर आप है वाटर हार्वेस्टिंग, खत्म हो गया। मगर डाइवर्जेंट थिंकिंग सो मेनी मेथड्स दे देगा, सो मेनी एक्चुअली मेजर्स दे देगा, ठीक है, डाइवर्जेंट में। मगर ये पर्टिकुलर जाएगा, ठीक है, वाटर हार्वेस्टिंग करके कंजर्व करना है, ठीक है। तो इसको तो कन्वर्जेंट थिंकिंग एक्चुअली लॉजिकल क्रिटिकल थिंकिंग रादर देन मच क्रिएटिविटी, इट इज यूजफुल फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड अचीविंग ए स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव। इसका जो हम डिस्कस करेंगे कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट के बीच में, तो कन्वर्जेंट क्या है, वो उसको एक करेक्ट और बेस्ट आंसर चाहिए और वो लॉजिकल स्टेप्स फॉलो करेगा, और क्रिटिकल थिंकिंग में वो एनालाइज करेगा, ठीक है। और कोई क्रिएटिविटी, कोई नोवेल्टी, कोई ओरिजिनलिटी, कोई डिफरेंट सॉल्यूशंस, डिफरेंट पॉसिबिलिटीज उसको नहीं चाहिए। मगर डाइवर्जेंट थिंकिंग में डिफरेंट पॉसिबिलिटी चाहिए, डिफरेंट सॉल्यूशंस चाहिए, डिफरेंट मेथड्स चाहिए, डिफरेंट आइडियाज चाहिए, नोवेल्टी माने न्यू थिंग्स चाहिए, और ओरिजिनलिटी यूनिकनेस चाहिए। मगर इसमें कन्वर्जेंट में हमको एक करेक्ट आंसर, करेक्ट सॉल्यूशन चाहिए, ठीक है। चलो नेक्स्ट वन, हाउ इज इट असेस्ड। कन्वर्जेंट थिंकिंग को हम असेस करेंगे, आईक्यू टेस्ट है, नॉलेज टेस्ट है, लॉजिकल डिस्कशंस और प्रॉब्लम सॉल्विंग टास्क, ओके, ये सब हम असेस करेंगे कन्वर्जेंट थिंकिंग को, ठीक है, क्लियर। अच्छा नेक्स्ट वन, हम उसके ऊपर पूरा क्लैरिटी करेंगे। डाइवर्जेंट थिंकिंग, डाइवर्जेंट थिंकिंग क्या है, उसके ऊपर भी मैं एग्जांपल दे दूंगा। डाइवर्जेंट इज द एबिलिटी टू जनरेट मेनी डिफरेंट ओरिजिनल एंड क्रिएटिव आइडियाज और सॉल्यूशंस फॉर ए गिवन प्रॉब्लम। एक प्रॉब्लम है, डिफरेंट सॉल्यूशंस आप देंगे, डिफरेंट आइडियाज, डिफरेंट सॉल्यूशंस, ओके, आपका क्रिएटिव आइडियाज, ओरिजिनल आइडियाज, ओके, ये सब आ जाता है डाइवर्जेंट थिंकिंग। तो कुछ कुछ टर्म्स आप देखिए डाइवर्जेंट, जैसे मैं डिफरेंट लगाया यहां पर, डिफरेंट में आइडियाज, डिफरेंट आइडियाज, पॉसिबिलिटीज, ठीक है, डिफरेंट आइडियाज, पॉसिबिलिटीज, सॉल्यूशंस, ओके, कि ओरिजिनलिटी, ओरिजिनलिटी, ओरिजिनलिटी मीन्स एक्चुअली आपको यूनिकनेस, ओरिजिनलिटी मीन्स यूनिक। आप एक चाइल्ड एक आइडिया क्रिएट करेगा, ये कॉन्सेप्ट को, वो बहुत यूनिक है, ठीक है। और नोवेल्टी, न्यूनेस, नोवेल्टी मीन्स न्यूनेस, ओके, तो ये सब चीज डाइवर्जेंट थिंकिंग में आता है, ठीक है। आप कोई क्वेश्चन पूछ लो, वो सो मेनी इट मीन्स फैक्टर्स वो ट्राई करेंगे, वो एक पर्टिकुलर आंसर में खुशी नहीं होंगे। दोज पीपल दे बिलीव ऑन डाइवर्जेंट थिंकिंग, यू गिव वन क्लू, you ask one question, so they want to provide many solutions, they want to provide many ideas, okay, they want to provide many possibilities, and always they want to give some ideas which are very unique one. Unique means originality. They want to give some new ideas, novelty. New means novelty, unique means originality. They want to clarify the particular it means concept in elaborate manner, ओके, सो मेनी फैक्टर्स दे वांट टू गिव, वो पर्टिकुलर फैक्टर को वो बिलीव नहीं करेंगे, सो मेनी फैक्टर, सो मेनी ऑप्शंस, सो मेनी पॉसिबिलिटीज। डाइवर्जेंट थिंकिंग की पॉइंट्स फोकसेस ऑन मेनी पॉसिबल आंसर्स रादर देन वन करेक्ट आंसर। कन्वर्जेंट थिंकिंग एक आंसर को ढूंढेगा, करेक्ट, ओनली वन आंसर उसको चाहिए, वन सॉल्यूशन चाहिए। मगर इसको मेनी आंसर्स, मेनी सॉल्यूशंस, मेनी आइडियाज, मेनी पॉसिबिलिटीज चाहिए। डाइवर्जेंट थिंकिंग एनकरेजेस क्रिएटिविटी, ओरिजिनलिटी, इमेजिनेशन। में बताया था कि ऑलवेज उसका जो आंसर होगा बहुत क्रिएटिव होगा, और ओरिजिनलिटी यूनिक, वो जो आंसर आपको मिलेगा बहुत यूनिक आंसर मिलेगा। और इमेजिनेशन, ठीक है, वो इमेजिनेशन के ऊपर बिलीव करते हैं। आइडियाज में बी जनरेटेड फ्रीली एंड स्पॉन्टानियसली, उनका जो आइडिया जनरेट होगा फ्रीली और स्पॉन्टानियसली, एवरी टाइम न्यू न्यू थिंग्स दे वांट टू प्रोवाइड,
न्यू थिंग्स एक्चुअली क्रॉप अप इन देयर माइंड। एक सपोज एक क्वेश्चन आप पूछा, वो एक रीजन दे दिया, इमीडिएटली अनदर रीजन, स्पॉन्टानियसली दे वांट टू गिव सम डिफरेंट न्यू पॉसिबिलिटीज, न्यू आइडियाज। ये टॉपिक और प्रॉब्लम इज ब्रोकन। एक टॉपिक है कि कोई प्रॉब्लम है, उसको वो डिफरेंट पार्ट्स में स्प्लिट अप करेंगे, इज ब्रोकन इनटू डिफरेंट पार्ट्स टू एक्सप्लोर वेरियस पॉसिबिलिटीज। एक डाइवर्जेंट थिंकिंग का एक है एक्सप्लोरेशन। एक्सप्लोरेशन इट मीन्स एक्सप्लोरेशन डिफरेंट आइडियाज, ओके, वेराइटीज ऑफ आइडियाज, वेराइटीज ऑफ पॉसिबिलिटीज। तो भाई टू एक्सप्लोर वेरियस पॉसिबिलिटीज। आप यहां पर देखिए क्वेश्चन आप पूछ लिया, यहां पर आप डिफरेंस आपको मिल जाएगा कि हाउ कैन वी रिड्यूस वाटर वेस्टेज इन आवर स्कूल। स्कूल में जो वाटर वेस्टेज है उसको कम कैसे हम रिड्यूस करेंगे। कॉन्वर्जेंट थिंकिंग एक आंसर दे देगा, ओके, वो बोलेगा कि जो सपोज रिपेयर, देखिए डाइवर्जेंट थिंकिंग में बहुत कुछ, जो लीक है टैप्स में उसको रिपेयर करना है, इंस्टॉल रेन वाटर हार्वेस्टिंग, यूज सेंसर बेस्ड टैप्स, सेंसर बेस्ड टैप यूज करेंगे तो वाटर वेस्टेज नहीं होगा, पुट अवेयरनेस पोस्टर्स, रीयूज वाटर फ्रॉम आरओ सिस्टम्स, आरओ सिस्टम का वाटर को फिर रीयूज करेंगे, कि सेव वाटर कैंपेन, सो मेनी things, so many ideas, so many possibilities, okay, so many unique things. Uniqueness means by originality. So many new things they want to introduce, okay, मगर convergent क्या है, एक पर्टिकुलर, ठीक है, हाउ कैन वी रिड्यूस वाटर वेस्टेज ना, आप सेंसर टैप्स लगा दो, एक आंसर ओनली, आप सेंसर टैप्स लगा दो तो वाटर वेस्टेज नहीं होगा, ठीक है। वो कॉन्वर्जेंट एक करेक्ट आंसर को ढूंढेगा, मगर डाइवर्जेंट थिंकिंग सो मेनी पॉसिबिलिटीज को ढूंढेगा। तो यहां पर दे दिया, देखिए शॉर्टकट में, डाइवर्जेंट सेम वन प्रॉब्लम बट मेनी आइडियाज और सॉल्यूशंस। डाइवर्जेंट क्रिएटिविटी, नोवेल्टी, ओरिजिनलिटी, ये सब आ जाएगा डाइवर्जेंट में। कॉन्वर्जेंट में वन प्रॉब्लम, वन बेस्ट और करेक्ट आंसर, ठीक है। इसमें देखिए दो चीज मैं बता रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कोई क्वेश्चन आता है हॉराइजॉन्टल थिंकिंग, वर्टिकल थिंकिंग। देखिए हॉराइजॉन्टल थिंकिंग क्या है, आप डिफरेंट एंगल में कोई प्रॉब्लम है, आप डिफरेंट एंगल में सोचेंगे ये प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाएगा। हॉराइजॉन्टल थिंकिंग को बोलते हैं लैटरल थिंकिंग, वो डिफरेंट एंगल्स फ्रॉम डिफरेंट कॉर्नर्स एक्चुअली दे ट्राई टू ब्रिंग सम न्यू आइडियाज टू सॉल्व द प्रॉब्लम, ये है लैटरल थिंकिंग। वर्टिकल क्या है, वो स्टेप्स कुछ स्टेप्स है, जैसे मैथ्स का प्रॉब्लम पूछा तो कुछ स्टेप्स है, फॉर्मूला है, कुछ स्टेप्स है, आपको एक करेक्ट आंसर ढूंढना है। मगर हॉराइजॉन्टल में वो डिफरेंट है, क्या डिफरेंट मेथड्स होगा, क्या डिफरेंट मेथड्स होगा जो ये प्रॉब्लम को हम सॉल्व करेंगे, किस तरीके का। सपोज हम फॉर्मूला तो हम जानते हैं मगर डिफरेंट मेथड्स हम फॉलो करेंगे, ठीक है। तो हॉराइजॉन्टल थिंकिंग ऑल्सो कॉल्ड लैटरल थिंकिंग, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर क्वेश्चन आता है। अच्छा, हॉराइजॉन्टल थिंकिंग में लुक्स एट ए प्रॉब्लम फ्रॉम डिफरेंट डायरेक्शंस, प्रॉब्लम को डिफरेंट डायरेक्शंस में वो देखेगा, जनरेट्स मेनी अल्टरनेटिव, मेनी आइडियाज, मेनी पॉसिबिलिटीज, मेनी सॉल्यूशंस, इसमें एनकरेजेस क्रिएटिविटी एंड न्यू पॉसिबिलिटीज, और वही है डाइवर्जेंट थिंकिंग। तो हॉराइजॉन्टल थिंकिंग का अल्टरनेट नेम है लैटरल थिंकिंग, को भी बहुत बार क्वेश्चन आया है। जो लैटरल थिंकिंग है वो डिफरेंट फ्रॉम डिफरेंट कॉर्नर्स एक्चुअली ट्राई टू सॉल्व द प्रॉब्लम, फ्रॉम डिफरेंट एंगल्स ट्राई टू सॉल्व द प्रॉब्लम, ओके। हॉराइजॉन्टल थिंकिंग की लैटरल थिंकिंग की डाइवर्जेंट थिंकिंग, दिस टाइप ऑफ थिंकिंग एक्चुअली डज नॉट बिलीव ऑन ए पर्टिकुलर सॉल्यूशन, they want to bring many solutions, they want to bring many ideas, they want to bring some unique ideas, जिसको बोलते हैं यूनिक मीन्स ओरिजिनलिटी, दे वांट टू ब्रिंग सम न्यू आइडियाज मीन्स नोवेल्टी, ठीक है। मगर वर्टिकल थिंकिंग क्या है, लॉजिकल स्टेप बाय स्टेप, लॉजिकल स्टेप बाय स्टेप थिंकिंग। और वर्टिकल थिंकिंग क्या है, कॉन्वर्जेंट थिंकिंग के साथ रिलेटेड, गोज डिपर इनटू वन लाइन ऑफ रीजनिंग, एक लाइन ऑफ रीजनिंग को वो डीपली जाएंगे। जैसे मैं यहां पर बता देता हूं वर्टिकल थिंकिंग, जैसे मैं अभी बताया था कि व्हाई डिड प्लांट डाई, सपोज एक क्वेश्चन आपको पूछा जा रहा है, आप ओनली वाटर एक कारण लेंगे, जैसे मैं बता चुका हूं, एक ओनली गोज डिपर इनटू वन लाइन ऑफ रीजनिंग,
कि स्कार्सिटी ऑफ वाटर, कि द रूट्स कुड नॉट ऑब्जर्व वाटर प्रॉपरली, कि ड्यू टू द ड्राई ऑफ द सॉइल, कि ड्यू टू द लैक ऑफ रेनफॉल, तो वाटर रिलेटेड। मगर डाइवर्जेंट थिंकिंग में नहीं, कि लैक ऑफ सनलाइट, कि insect actually, some insect actually adversely affect the plant, कि due to weakness of the plant, ड्यू टू कि फोटोसिंथेसिस प्रॉब्लम। तो बहुत कुछ फैक्टर्स और सो मेनी फैक्टर्स एक्चुअली डाइवर्जेंट जो हॉरिजॉन्टल थिंकिंग, लैटरल थिंकिंग, डाइवर्जेंट थिंकिंग, सो मेनी आइडिया, सो मेनी सॉल्यूशंस देगा। ठीक है। अच्छा, वर्टिकल थिंकिंग फोकसेस ऑन फाइंडिंग बेस्ट और करेक्ट सॉल्यूशन। तो उसको एक बेस्ट और करेक्ट सॉल्यूशन चाहिए, वो फैक्ट को यूज करेगा। ठीक है, इसमें देखिए यूजेस फैक्ट्स, लॉजिक एंड सिस्टमेटिक रीजनिंग एंड सिमिलर टू कन्वर्जेंट थिंकिंग। तो उसमें मैं दे दिया, आप एक पिक्चर देखिए, डाइवर्जेंट एंड कन्वर्जेंट। देखिए कन्वर्जेंट थिंकिंग वो ओनली फैक्ट्स डाटा, इसमें फैक्ट्स है कि डाटा है, और उसको वो लॉजिकल प्रोसेस, कुछ स्टेप्स है, लॉजिकल प्रोसेस मीन्स कुछ स्टेप्स, और सॉल्व द प्रॉब्लम। ओके, यूजिंग लॉजिक मीन स्टेप्स, सीक्वेंस। ठीक है, और वो चाहेगा फैक्ट्स को लेगा, जैसे फॉर्मूला है, फॉर्मूला को यूज करेगा, और कुछ स्टेप्स है, और अल्टीमेटली उसको एक करेक्ट आंसर चाहिए। मगर डाइवर्जेंट जो है उसको आइडिया, सो मेनी आइडियाज, यूजिंग इमेजिनेशन, यूजिंग क्रिएटिविटी, यूजिंग नोवेल्टी, यूजिंग ओरिजिनलिटी। तो यहां पर जो डाइवर्जेंट थिंकिंग है वो हॉरिजॉन्टल थिंकिंग है, जिसमें एक ब्रेनस्टॉर्मिंग वही है। ब्रेनस्टॉर्मिंग क्या है ना, बहुत सॉल्यूशन, उसको सो मेनी पॉसिबिलिटीज चाहिए, सो मेनी आइडियाज। जो ब्रेनस्टॉर्मिंग पीपल, they want to bring new idea, they want to bring some unique idea, they want to bring different solutions to solve the problem from different corners, from different angle, they want to bring some ideas to solve the problem। और इसमें जो कन्वर्जेंट है वो क्रिटिकल और वर्टिकल एनालिटिकल और लिनियर थिंकिंग, इसको बोलते हैं भी लिनियर मीन्स स्टेप बाय स्टेप बेसिस, लिनियर थिंकिंग इसको बोलते हैं। ठीक है, लिनियर थिंकिंग मीन स्टेप बाय स्टेप, वो फॉर्मूला है, कुछ स्टेप्स में हम उसको सीक्वेंस बेसिस में सॉल्व करके एक राइट आंसर हमको मिलेगा। लिनियर थिंकिंग वो कन्वर्जेंट है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज, कुछ इंफॉर्मेशन आपको दिया, कुछ फीचर्स आप देख लीजिए कन्वर्जेंट थिंकिंग, डाइवर्जेंट थिंकिंग का। प्राइमरी गोल, फाइंड द सिंगल बेस्ट सॉल्यूशन। कन्वर्जेंट फाइंड द सिंगल बेस्ट सॉल्यूशन, डाइवर्जेंट जनरेट मल्टीपल वैरिड पॉसिबिलिटीज, और कन्वर्जेंट में लिनियर स्ट्रक्चर्ड इवैल्यूएटिव। तो मैं बताया था लिनियर, ये बहुत इंपॉर्टेंट। लिनियर मीन स्टेप बाय स्टेप, सीक्वेंस, लॉजिकल प्रोसेस। ओके, और स्ट्रक्चर मीन सिस्टमेटिकली, और एक इवैल्यूएशन, एक करेक्ट रिजल्ट चाहिए। मगर ये लैटरल है, लैटरल डिफरेंट एंगल, डिफरेंट डायरेक्शन। ओके, so divergent thinking from different angle, from different direction, they want to bring different ideas, different possibilities, different solutions। और exploratory मतलब exploration it means exploration of new ideas, exploration of possibilities। okay, और spontaneous, एक के बाद एक वो they want to bring some ideas। एक idea, suppose one idea crop up in the mind, immediately another idea okay will create in the mind। और ये accuracy and efficiency है, ये novelty means newness, originality, uniqueness, याद रखिए, novelty new, originality unique। best used for convergent thinking, execution, decision making, diagnostic। divergent thinking ब्रेनस्टॉर्मिंग, उनको डिफरेंट मेथड्स, डिफरेंट सॉल्यूशंस, डिफरेंट पॉसिबिलिटीज चाहिए। आइडियासन वही है, आइडियासन मीन्स एक्चुअली वेराइटी ऑफ आइडियाज। ओके, वेराइटी ऑफ न्यू थिंग्स, वेराइटी ऑफ न्यू आइडियाज, क्रिएटिंग न्यू आइडियाज, ये सब आइडियासन है। और प्रॉब्लम फ्रेमिंग। ठीक है, एग्जाम्पल एक्टिविटी, सॉल्विंग ए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, कन्वर्जेंट। एक ऑप्शन है, एक ऑप्शन को हम चूज करेंगे, 4 ऑप्शन से एक ऑप्शन को हम चूज करेंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। मगर यहां पर ब्रेनस्टॉर्मिंग अल्टरनेटिव यूजेस फॉर एन ऑब्जेक्ट। ओके, जो हाइपोथेटिकल थिंकिंग होता है, हम उसको प्रॉपरली
एनालाइज करेंगे और डिफरेंट आइडियाज लाएंगे, यूनिक आइडिया, हमको न्यू पॉसिबिलिटी, हमको न्यू सोल्यूशन लेके हमको रिजल्ट अल्टीमेट कंक्लूजन में रीच करना है। ठीक है, तो मैं ट्राई किया उसको डिस्कस करने के लिए। अभी हम 10 क्वेश्चंस देखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, एट द स्टार्ट ऑफ एन एकेडमिक सेमिस्टर ए मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट administers an ungraded test to incoming freshmen to decide whether they should enroll in introductory algebra or advanced calculus. What type of evaluation does this represent? Entry level, इसमें क्या है, स्टार्ट होगा एकेडमिक सेमिस्टर। मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट ने क्या किया, जो फ्रेशर्स है उनके लिए वेदर दे शुड एनरोल इन इंट्रोडक्टरी अलजेब्रा और एडवांस्ड कैलकुलस, तो उसके लिए एक एंट्री टेस्ट किया। यदि वो मैथमेटिक्स लेंगे तो कौन सा इट मीन्स किसमें उनको एनरोल किया जाएगा, इंट्रोडक्टरी अलजेब्रा में ना एडवांस्ड कैलकुलस में, तो उसके लिए एक एंट्री टेस्ट किया जाएगा। तो ये जो है ये प्लेसमेंट एवेल्युएशन है, ऑप्शन डी। एंट्री लेवल टेस्ट मींस ऑप्शन डी, प्लेसमेंट एवेल्युएशन। क्वेश्चन नंबर 2, ड्यूरिंग ए यूनिट ऑन जेनेटिक्स, जेनेटिक्स का एक यूनिट है, जो बायोलॉजी टीचर था उसको डिस्कस किया। ए बायोलॉजी टीचर यूजेस डिजिटल एग्जिट टिकट्स। अच्छा, डिजिटल एग्जिट टिकट्स मींस एक असेसमेंट, स्मॉल असेसमेंट एट द एंड ऑफ ईच क्लास। जैसे क्लास खत्म हुआ वो एक स्मॉल असेसमेंट टेस्ट किया टू क्लासिफाई, टू आइडेंटिफाई कॉन्सेप्ट्स स्टूडेंट्स मिसअंडरस्टूड एंड एडजस्ट द नेक्स्ट डेज लेसन प्लान, व्हिच एवेल्युएशन। तो आप देखिए, बायोलॉजी टीचर ने क्या किया, एक जेनेटिक्स का एक यूनिट को एक क्लास में खत्म करके वो एक स्मॉल असेसमेंट टेस्ट लिया कि वेदर द चिल्ड्रन एक्चुअली दे अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट प्रॉपरली और नॉट। यदि मेजॉरिटी स्टूडेंट्स एक्चुअली इट मीन्स दे डिड द इनकरेक्ट आंसर। आप देखा जो स्मॉल असेसमेंट टेस्ट हुआ, एक पर्टिकुलर क्वेश्चन था, मेजॉरिटी स्टूडेंट्स एक्चुअली इट मीन्स इनकरेक्टली एक्चुअली दे हैव डन that actually question, तो मेजॉरिटी स्टूडेंट्स एक्चुअली रॉन्गली गिवन द आंसर मींस, तो उसको रीटीच किया जाएगा। वो नेक्स्ट लेसन प्लान ऐसे प्रिपेयर करेगा कि उसको अगेन रीटीच किया जाएगा ये जेनेटिक। तो ये जो है ये फॉर्मेटिव एवेल्युएशन है, क्योंकि फॉर्मेटिव एवेल्युएशन में एवरी यूनिट एंड में असेसमेंट टेस्ट होगा और टीचर डिटेक्ट करेगा कि वेदर द चिल्ड्रन एक्चुअली दे अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट प्रॉपरली और नॉट, और उनको फीडबैक देगा और उनका इंप्रूवमेंट को जज करेगा। ओके, उनका लर्निंग इंप्रूवमेंट को वो डिटेक्ट करेगा। ओके, उसको क्या उनका लर्निंग लेवल है उसको एवेल्युएट करेगा। तो ये फॉर्मेटिव एवेल्युएशन एक ऑनगोइंग प्रोसेस है, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस चल रहा है, फिर बच्चों को हम कंटिन्यूअसली एवेल्युएट कर रहे हैं। तो फॉर्मेटिव एवेल्युएशन, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, ए स्टूडेंट रिपीटेडली फेल्स रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन टास्क involving inferential reasoning despite passing regular formative quizzes. The educational psychologist administers a battery of specialized sub-tests to pinpoint specific cognitive processing deficit. What form of evaluation is being conducted? देखिए, स्टूडेंट ने कॉम्प्रिहेंशन जो टास्क है उसमें रिपीटेडली फेल हो रहा है, डिस्पाइट पासिंग रेगुलर फॉर्मेटिव जो क्विज हो रहा है वो पासिंग हो रहा है, मगर जो कॉम्प्रिहेंशन टास्क है उसमें रिपीटेडली फेल हो रहा है। तो उसलिए क्या किया, एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट ने एक स्पेशलाइज सब टेस्ट कंडक्ट किया कि डिटेक्ट करेगा, पिन पॉइंट करेगा कि कौन सा कॉग्नाइटिव स्पेसिफिक कॉग्नाइटिव प्रोसेसिंग डेफिसिट है, किस जो कॉग्नाइटिव एरिया में, किस स्पेसिफिक एरिया में उसका डेफिसिट है। तो ये तो डायग्नोस्टिक एवेल्युएशन है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, ए स्टेट-वाइड बोर्ड एग्जामिनेशन assigns letter grades ABCF to high school seniors at the end of the academic year for awarding diplomas. Which category of evaluation does this process demonstrate? देखिए, बोर्ड एग्जामिनेशन खत्म हुआ और एक पर्टिकुलर ग्रेड मिला, ग्रेड ए कि बी कि सी कि डी ई एफ ऐसे। तो जो व्हाट टाइप ऑफ कैटेगरी ऑफ एवेल्युएशन एट द एंड ऑफ द सेशन, जो एग्जामिनेशन एनुअल एग्जामिनेशन की बोर्ड एग्जामिनेशन है वो
समेटिव एवेल्युएशन है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, which of the following classroom prompts specifically require students to employ divergent thinking? Determine which of 4 provided chemical compounds has the highest boiling point. List 5 distinct ways a coastal city could mitigate flooding using sustainable urban architecture. Calculate the exact volume of a sphere whose radius measures 6 cm. Identify the primary constitutional amendment that guarantees freedom of speech in the United States. तो इसमें ऑप्शन बी, लिस्ट 5 distinct ways a coastal city could mitigate flooding using sustainable urban architecture. तो यहां पर divergent thinking, different ideas, different solutions from different corner, from different angle, divergent thinking mind brings some solutions. तो यहां पर ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अदर्स क्या है, सब कॉन्वर्जेंट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, which cognitive task relies primarily on convergent thinking rather than divergent thinking? अच्छा, drafting an alternative ending for an unfinished literary work, selecting the single optimal route in a logistics network using Dijkstra's algorithm, bit C, brainstorming potential marketing slogans for a new brand of electric vehicles, suggesting 10 unconventional uses for an ordinary brick. देखिए इसमें जो सिंगल ऑप्टिमल रूट दे दिया, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, बिकॉज अदर सब डाइवर्जेंट है। 10 अनकन्वेंशनल यूजेस, ब्रेनस्टॉर्मिंग, ये सब रिलेटेड है डाइवर्जेंट, कि आपका एक अनफिनिश्ड लिटरेरी वर्क है, उसको ड्राफ्टिंग ऑल्टरनेटिव वे में करना है, ये सब डाइवर्जेंट थिंकिंग। सिलेक्टिंग ए सिंगल जो ऑप्टिमल रूट है इन ए लॉजिस्टिक नेटवर्क, तो वो कॉन्वर्जेंट है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, हाउ डू diagnostic and formative evaluations primarily differ in their classroom application? Diagnostic evaluation is administered exclusively at semester end, whereas formative evaluation occurs prior to instruction. Diagnostic evaluation isolates deep-seated learning deficiencies, where formative evaluation monitors general day-to-day instructional progress. Diagnostic evaluation tests high-level creative synthesis, whereas formative evaluation tests basic recall. Diagnostic evaluation produces formal letter grades, whereas formative evaluation produces qualitative commentary. तो आप ऑप्शन बी देखिए, डायग्नोस्टिक एवेल्युएशन आइसोलेट्स डीप सीटेड लर्निंग डेफिशिएंसीज, whereas formative evaluation monitors general day to day instructional progress. Option B is the correct answer. Question number 8, in JP Guilford structure of intellect model, which set of attributes best characterizes divergent thinking? Categorization, rote, memorization, recall and retention, fluency, flexibility, originality and elaboration, standardization, norming, reliability and validity, deduction, syllogistic, logic, speed and precision. आप यहाँ पर देखिए ऑप्शन बी, फ्लुएंसी, फ्लेक्सिबिलिटी, ओरिजिनलिटी, फ्लुएंसी मीन्स एक्चुअली क्वांटिटी। आप देखिए हम बोलते हैं ना कि दिस पर्सन इज फ्लुएंटली स्पीकिंग, तो वो एक एक्सटेम्पोर स्पीकर है, इमाकुलेट स्पीकर है। कोई भी कॉन्सेप्ट उसको दे दीजिए, कोई भी टॉपिक दे दीजिए, वो अच्छे से उसको क्लैरिफाई करेगा। फ्लेक्सिबिलिटी, वही वेराइटीज ऑफ आइडियाज, वेराइटीज ऑफ सॉल्यूशंस। ओरिजिनलिटी तो है, मैं बताया था, यूनिकनेस जो है वो ओरिजिनलिटी है, यूनिकनेस। और एलाबोरेशन, कोई भी कॉन्सेप्ट को प्रॉपरली एलाबोरेट करना, तो ये सब डाइवर्जेंट थिंकिंग है। फ्लुएंसी, फ्लेक्सिबिलिटी, ओरिजिनलिटी एंड एलाबोरेशन, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, a teacher notices that an assessment composed exclusively of standard 4 option multiple choice questions in limiting student performance insight. Which cognitive dimension in this assessment structure primarily failing to assess directly? इसमें तो MCQs है, 4 ऑप्शन है, ABCD ऐसे ऑप्शन है, जो ऑप्शन में आपको एक ऑप्शन चूज करना है, जो करेक्ट आंसर को आपको चूज करना है। मगर यहां पर क्या है, which cognitive dimension in this assessment structure primarily failing to assess directly? तो वो है डाइवर्जेंट थिंकिंग, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। क्योंकि डाइवर्जेंट थिंकिंग कभी क्या है,
जैसे एमसीक्यू में आपको एक पर्टिकुलर ऑप्शन चूज करना है, मगर डाइवर्जेंट थिंकिंग उसको डिफरेंट सॉल्यूशंस चाहिए, डिफरेंट आइडियाज, डिफरेंट पॉसिबिलिटीज। ओके, उसको कुछ यूनिक सॉल्यूशन चाहिए, यूनिक आइडिया चाहिए। तो यहां पर क्या है, इस तरीके का जो एमसीक्यू क्वेश्चंस होता है, हम एक पर्टिकुलर रेस्पॉन्स को चूज करेंगे, वो कन्वर्जेंट थिंकिंग है। तो यहां पर क्या है, क्या फेलिंग हो रहा है, प्राइमरी फेलिंग, डाइवर्जेंट थिंकिंग। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। लास्ट क्वेश्चन, during an engineering design workshop, teams first spend 45 minutes generating radical concept sketches without critic, and then spend the remaining time applying cost benefit formulas to pick the single most feasible blueprint. Which sequence of cognitive thinking is being utilized? देखिए, फास्ट इसमें दिया है, टीम्स फर्स्ट स्पेंड 45 मिनट्स जनरेटिंग रेडिकल कॉन्सेप्ट स्केचेस विदाउट क्रिटिक। नेक्स्ट है, फिर उनको दिया गया देन स्पेंड द रिमेनिंग टाइम अप्लाइंग कॉस्ट बेनिफिट फॉर्मूलाज टू पिक द सिंगल मोस्ट फिजिबल ब्लूप्रिंट। तो इसमें क्या है, डाइवर्जेंट टू कन्वर्जेंट। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, डाइवर्जेंट थिंकिंग फॉलोड बाय कन्वर्जेंट थिंकिंग। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। जैसे समेटिव थिंकिंग फॉलोड बाय फॉर्मेटिव, ऐसा नहीं है। इंडक्टिव थिंकिंग फॉलोड बाय एनालॉजिकल थिंकिंग, कन्वर्जेंट थिंकिंग फॉलोड बाय डाइवर्जेंट। तो डाइवर्जेंट थिंकिंग फर्स्ट वन है, नेक्स्ट वन जब सिंगल मोस्ट फिजिबल ब्लूप्रिंट है वो कन्वर्जेंट है। तो डाइवर्जेंट थिंकिंग फॉलोड बाय कन्वर्जेंट थिंकिंग। अच्छा, इसमें मैं थोड़ा आइडिया दे देता हूं। इंडक्टिव थिंकिंग, इंडक्टिव थिंकिंग है स्पेसिफिक टू जनरल। सपोज मैं बता रहा हूं सम ऑफ द इवन नंबर्स 2 + 4 की 4 + 6 की 6 + 10। तो हम ये क्या बोलते हैं, इस तरीके का स्ट्रक्चर को देख के कि सम ऑफ द 2 इवन नंबर्स इज एन इवन नंबर। तो यहां पे क्या है, स्पेसिफिक टू जनरल जाएंगे हम यहां पर। अल्टीमेटली हम डिटेक्ट किए सम ऑफ द 2 इवन नंबर्स, सम ऑफ द 2 इवन नंबर्स इक्वल टू अन इवन नंबर, ये है ना। तो ये एक क्या है, जनरल को आ गए। तो स्पेसिफिक एक स्ट्रक्चर को, स्पेसिफिक से जनरल, इंडक्टिव। इंडक्टिव थिंकिंग मीन स्पेसिफिक टू जनरल। ठीक है, मैं जैसे एक एग्जांपल दिया। अच्छा, आपको कोई बोलेगा एक डेडक्टिव थिंकिंग क्या है? डेडक्टिव क्या है? डेडक्टिव है जनरल टू स्पेसिफिक, जनरल टू स्पेसिफिक। ठीक है, कैसे ना, सम ऑफ द, सपोज हम जानते हैं कि एक ट्रायंगल में जो सम ऑफ द एंगल्स, एक्चुअली सम ऑफ द एंगल्स इज इक्वल टू 80 डिग्री। ठीक है, यहां पर दे दिया, सपोज ये 45 डिग्री दिया, ये 60 डिग्री दिया, तो इसको ये मिसिंग है, ये मिसिंग है, तो एंगल सी मिसिंग है। तो एंगल सी को हम निकालेंगे, तो ये क्या है, जनरल टू स्पेसिफिक, डेडक्टिव जनरल टू स्पेसिफिक। क्योंकि वी नो दैट सम ऑफ द एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री कि 2 राइट एंगल्स, ये तो जनरल है। स्पेसिफिक आएंगे, सपोज ट्रायंगल का 2 एंगल्स दिया है, 2 एंगल्स गिवन, यू फाइंड द थर्ड एंगल। ठीक है, तो यहां पर क्या है, जनरल टू स्पेसिफिक डेडक्टिव, मगर स्पेसिफिक टू जनरल इंडक्टिव। ठीक है, तो आज इतना ही है। तो फिर आप वेट कीजिए मेजरमेंट एंड एवेल्युएशन के ऊपर नेक्स्ट टॉपिक। आज इतना ही है। थैंक यू एंड नमस्कार टू ऑल ऑफ यू।